पहले वर्बली थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किया था और हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या किया है। तो दोनों को हम टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। वन विच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and the second one is the electrolytic cell, right? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पहले पढ़ा कि the chemical energy is converted to electrical energy, whereas in electrolytic cell opposite happens. Electrical energy is converted to chemical energy. ठीक है? In this case, electrochemical cells, the reactions are spontaneous, whereas in electrolytic cells the reactions are non-spontaneous, right? Here the reactions are spontaneous, there the reactions they are non-spontaneous. In electrochemical cell the cathode is positively charged, whereas in electrolytic cell the cathode is negatively charged. ठीक है? उसी के साथ anode over here that is going to be negatively charged and anode over here that is going to be positively charged. Although दोनों सेल्स में कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगी और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी। ठीक है? चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इन बोथ द केसेस कैथोड और एनोड में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है साइमल्टेनियसली। ठीक है? देन नंबर 4, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन मूव्स from anode to cathode, move from anode to cathode, or in case of electrolytic cell the electrons are supplied from external battery. यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी है वो सप्लाई करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है? इज इट अंडरस्टूड? सो ये 4 डिफरेंसेस। देन इन द 5th डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 different half cells are set up. 2 different half cells are set up. One of the half cell in which oxidation is taking place, that is known as what? It is known as oxidation half cell, and the other one in which reduction is taking place, that is known as reduction half cell. जो electrolytic cell होता है उसमें there is only one cell present. Only one cell present in which both oxidation and reduction they are going to take place. ठीक है? Have you understood? So this is the difference between electrochemical and electrolytic cell. 2 marks का question आपको आ सकता है। Clear हो गया? Then next we go on to the next topic. You can say the last half of the chapter. Last half of the chapter, which is known as batteries. So batteries क्या होते हैं? They are certain commercial cells
which are used in our day-to-day life, और in commercial cells को हम क्या बुलाते हैं? They are known as batteries, right? We are going to discuss two types of batteries. The first one which are known as primary cells, right? The primary batteries or primary cells, we say they are non-rechargeable batteries. Non-rechargeable मतलब कि once इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है या कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, अगर वो खत्म हो जाता है तो in that case जो बैटरी है वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो ऑपरेट करना बंद कर देती है, ठीक है? That is what a primary cell is. Clear हो गया? The second type of cells, they are known as secondary cells or secondary batteries. जो secondary cells होते हैं, they are rechargeable cells. मतलब कि अगर हम उसमें सेल्स की रिएक्शंस को ऑपोजिट कर दें तो उस सेल को हम दोबारा ऑपरेशन में ला सकते हैं. That is the secondary batteries. We are going to discuss two types of primary cells over here. The first type of cell, that is the common cell जो कि हम लोग टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, which is known as the Daniell cell, या इसका एक और नाम है, it is known as the Leclanché cell. Daniell cell और Leclanché cell, ठीक है? Leclanché after the name of the scientist. तो इसमें इस सेल में बेसिकली क्या होता है कि this cell consists of, let's diagrammatically see क्या क्या है इसमें. पर जब आप एग्जाम में कोई भी एक सेल को डिस्क्राइब करोगे तो आपको उसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है. यू शुड नो कि उस सेल में कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, और उन दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है. अगर आप ये सब कुछ लिखते हो, अगर सपोज आपको आ जाता है कि एक्सप्लेन अ Daniell सेल, तो उसपे अगर आप ये सब कुछ लिखते हो, चाहे पॉइंट वाइज भी लिखोगे, इवन देन यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है? सो हम लोग डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं. दिस सेल इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन रॉड व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है? और इस कार्बन रॉड को सराउंड करते हैं बाय अ डीपोलराइजर, ओके? और इस चैम्बर को फाइनली हम लोग सराउंड करते हैं बाय अ वेसल ऑफ एनोड और जिंक व्हिच बिहेव्स एज एन एनोड. और इस वेसल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट पड़ा रहता है, ठीक है? सो ये जो यहां पे है सेंटर में, दिस इज ग्रेफाइट and this behaves as a cathode which is negatively charged, which is positively charged, ठीक है? So cathode that is going to be positively charged, or this cathode is made up of graphite, ठीक है? इसके बाहर हमने एक डीपोलराइजर लिया है जो कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग कर रहा है. इट इज अ point of or a vessel of separation between the cathode and the anode, and this depolarizer it consists of manganese dioxide plus carbon, ठीक है? And finally outside we have the electrolyte, this electrolyte it is a paste of ammonium chloride and zinc chloride, ठीक है? पेस्ट ऑफ
अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये जो हमारे पास बाहर, सबसे बाहर ये वेसल पड़ा है, दिस वेसल दैट इज कंपोज्ड ऑफ जिंक and this has a negative charge and behaves as an anode. क्लियर हो गया? अब मुझे आप ये बताओ कि ये कौन सी टाइप ऑफ सेल है? इसमें कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड नेगेटिवली चार्ज है, सो इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्लियर हो गया? तो अब हमें पता चल गया कि कैथोड ग्रेफाइट, एनोड जिंक, डीपोलराइजर मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन and electrolyte is based of NH4 Cl and ZnCl2. Now we need to know the reactions at the cathode and the anode. So let's see anode की reaction. Anode is made up of zinc और anode पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, so zinc minus 2 electrons to give us Zn2 positive. ठीक है, एनोड रिएक्शन, कैथोड में जो रिएक्शन होगी दैट विल बी बिटवीन द आयंस, सो इलेक्ट्रोलाइट से अमोनियम आयन, it reacts with the depolarizer which is manganese dioxide and we know that यहाँ पे cathode पे always reduction is going to take place, right? So plus 2 electrons, so this is going to give us what? It will give us manganese oxyhydroxide, ठीक है, and plus ammonia, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, जब हम ओवरऑल रिएक्शन इसकी लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स कट गए, राइट? सो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई जिंक प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस MnO2 to give Zn2 positive plus MnOH plus 2NH3. ठीक है, अब the question now comes कि ये सेल जो है वो डेड कब होएगा? ये सेल तब डेड होता है, आप देख रहे हो कि जिंक यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव स्टेट पे जा रहा है तो ये करोड हो रहा है, तो जिंक का जो वेसल है ये अंदर से करोड होता रहता है, राइट? और सेकेंडली इसमें क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड इज बीइंग यूज्ड अप, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड यूज हो रहा है तो ये हमें क्या दे रहा है? इट इज गिविंग अस अमोनिया। ओके, सो इसमें अमोनिकल स्मेल आने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी एक ये टॉर्च सेल या वो छोटे पेंसिल सेल्स जो होते हैं वो अगर पड़े रहेंगे काफी टाइम के अंदर टॉर्च के अंदर और हम उसको यूज नहीं करते हैं तो एक तो उसके ऊपर ब्राउन से कलर की लेयर आपको नजर आती है, ठीक है? वो जो ब्राउन से कलर की लेयर है दैट इज करोजन ऑफ जिंक, एंड सेकेंडली उसमें से एक टिपिकल सी स्मेल आने लग जाती है। वो जो बिल्कुल एक टिपिकल सी स्मेल आती है दैट इज द स्मेल ऑफ अमोनिया। Clear? So once either the paste of ammonium chloride finishes over here or zinc gets corroded, in either of the cases जो सेल है that is going to stop working, right? वोल्टेज जो इस सेल की होती है that is approximately between 1.2 to 1.5 volts, 1.2 to 1.5 volts, ठीक है? That is going to be the this thing. अब ये वाला जो सेल है that is very important from your examination point of view. The second type of cell which we are going to do that is the mercury cell.
mercury cell, or this is also known as button cell, because it appears to us like a button. जो वॉचेस के अंदर सेल होता है, या जो बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं उसके अंदर वो छोटा सेल होता है. पुराने जमाने में वीडियो गेम्स आती थी, जब मैं छोटी थी तो वीडियो गेम्स आती थी, इतनी सी वीडियो गेम होती थी, बटन्स के साथ चलती थी. अब तो तुम फोन के ऊपर चलाते हो ना उसको, ठीक है, तो उससे वो जो छोटे से सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज द बटन सेल्स. दैट बटन सेल्स दे हैव मर्करी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसलिए हम उसको मर्करी सेल्स भी बुलाते हैं. ठीक है, so when we are doing the mercury cell, in case of mercury cell you can write down it consists of anode which is made up of zinc and cathode which is made up of mercuric oxide, right, HgO. The oxidation state of mercury in this case, that is going to be equal to 2, and the electrolyte over here it is a paste of potassium hydroxide and zinc oxide. ठीक है, let's go on to the reactions. एनोड की रिएक्शन देखते हैं. एनोड पे जिंक दैट इज गोइंग टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो जिंक -2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस Zn2 पॉजिटिव. ठीक है, और जो रिएक्शन होगी इन केस ऑफ एनोड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग मर्करी सेल ले रहे हैं, तो इसमें जो जिंक जो एनोड लेते हैं वो सिर्फ हम मर्करी का नहीं लेते. In certain books it is written that we are taking the anode of zinc mercury amalgam, right? किसी भी alloy को अगर हम mercury के साथ combine कर देते हैं तो उसे हम amalgam बुलाते हैं, right? So यहाँ पे anode की improvised reaction हम लिख रहे हैं. फिर zinc and mercury amalgam ये react करता है with hydroxide from the electrolyte. KOH है ना यहाँ पे, so KOH का जो हाइड्रोक्साइड है उसके साथ ये रिएक्ट करता है टू गिव अस ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप इस साइड भी लिख सकते हो -2 इलेक्ट्रॉन्स करके, या आप उस साइड भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एनोड. फिर कैथोड की रिएक्शन देखते हैं. Cathode is made up of mercuric oxide that reacts with the water molecule which is formed over here. ठीक है, plus H2O, because reduction reaction has to take place over here, plus 2 electrons, right? So इसको जब हम react करते हैं, this is going to give us Hg plus 2OH negative, right? ओवरऑल रिएक्शन के लिए एनोड रिएक्शन ये हो गई और कैथोड रिएक्शन वो हो गई. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे. वाटर एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, वाटर और वाटर भी कट जाएगा. ठीक है, 2OH नेगेटिव इज ऑन द एक साइड लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड राइट हैंड साइड, तो ये भी कट जाता है. सो हमारे पास फाइनली ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या बच गया? वी हैव Zn Hg, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे वापस आ गया प्लस HgO टू गिव अस ZnO plus Hg. This is the overall reaction. Why this cell has a you can say greater life with respect to the Langerhans cell. आप देखते हो कि जो वॉचेस में आप सेल डालते हो उसको एक डेढ़ 2 साल चेंज ही नहीं करना पड़ता. Sometimes even more than that. Although watch तो कभी भी बंद नहीं ना होती है, it is constantly running. Okay? तो यहाँ आप जब फाइनल इक्वेशन देखते हो तो इसमें कोई भी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है.
Because there are no charges involved, therefore this cell has a longer life. Is it clear? Okay. So इसकी जो voltage रहती है that is approximately 1.35 volt. Right? So these are the two primary cells. Then let's go on to the secondary cells. ये सारे electrochemical cells हैं. जो हमने first वाला cell किया, Leclanché, that is also electrochemical. This is also electrochemical. ठीक है? The third type of cells or the secondary cells which we are going to do, as we just said, the secondary cells, they are rechargeable, right? Rechargeable का मतलब क्या हुआ कि it can be again charged for use. Once उसके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन करके हम उसको वापस ऑपरेशनल बना सकते हैं. That is what rechargeable battery means. ठीक है? इसमें दो सेल्स आपकी मतलब बुक में दिए हुए हैं, but only one cell is in your syllabus, which is known as the lead storage battery. Right? A lead storage battery, that is also known as car battery, because this is generally used in the cars. अगर किसी ने कार की बैटरी देखी हुई है तो it consists of a large black color का एक प्लास्टिक का सिलेंडर जैसा होता है. ठीक है? इस सिलेंडर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. The electrolyte in this case, that is 38% sulfuric acid, right? Which is also known as, क्या कहते हैं इसको? मूवी देखी है वो गंगा जल? एक अजय देवगन की मूवी है जिसमें वो एसिड फेंकते रहते हैं सबके ऊपर, गाड़ी में से निकालते. तो बिहार के ऊपर वो मूवी बनी हुई है जिसमें बहुत ज्यादा विलेन्स रहते हैं, देन वो इसके साथ ही अटैच करते हैं. The name of the movie is गंगा जल. ठीक है? So this is गंगा जल which is present over here, 38% H2SO4. Okay? So इसमें जब हम लोग कैथोड और एनोड देखते हैं तो एनोड दैट इज मेड अप ऑफ लेड प्लेट्स एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड प्लेट्स. ठीक है? प्लेसमेंट इसकी किस तरह से होती है? वी हैव इस तरह से एक इलेक्ट्रोड की प्लेट्स को हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं. ठीक है? और दूसरे की प्लेट्स को हम इनके डिस्टेंसेस के बीच में प्लेस करते हैं. Now this is again an example of electrochemical cell. ठीक है? It is an example of electrochemical cell. So electrochemical cell में anode comes on the left hand side. So ये anode हो गया. This is plates of lead. Anode which is negatively charged, or this is the cathode. Right? And this cathode is positively charged. Right? Anode and cathode. अब let's look at the reactions. First of all, anode की reactions हम देखते हैं.
एनोड की रिएक्शंस. नाउ एनोड दैट इज मेड अप ऑफ लेड, सो ऑक्सीडेशन होगी, Pb will lose 2 electrons to go into Pb2 positive state. और ये जो Pb2 पॉजिटिव है ये H2SO4 के सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अस लेड सल्फेट. ओवरऑल रिएक्शन जब हम इसकी देखेंगे तो ये और ये कट गया. सो वी हैव Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स to give us PbSO4. This is the overall reaction of only the anode. पूरी उसकी रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एनोड की ओवरऑल रिएक्शन है ये. ठीक है. उसी तरह से जब हम कैथोड पे जाते हैं तो कैथोड पे रिडक्शन होगी. इन कैथोड PbO positive reacts with the H positive over here. ठीक है. सो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है. कैथोड पे रिडक्शन होती है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2. ठीक है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ द कैथोड. अब जो Pb2 पॉजिटिव यहां पे बना है ये भी SO4 के साथ रिएक्ट करेगा. Such that overall reaction अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे आप देखो ये Pb2 और Pb2 कट गया. ठीक है. सो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव PbSO4 plus 2H2. Right? अब यहां पे this is the overall reaction for anode. This is the overall reaction for cathode. अब हमको सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो इन दोनों से सेल की ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं हम. यहाँ पे हमारे पास -2 इलेक्ट्रॉन्स है. बोथ इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड. ठीक है. सो हमारे पास आ गया ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 और SO4 2SO4 2 नेगेटिव. ठीक है. प्लस 4H पॉजिटिव टू गिव ओवर हियर एनोड पे हमारे पास एक PbSO4 यहां पे और एक PbSO4 यहां पे. So we have 2 PbSO4 plus 2H2. ये जब आप पूरा कंप्लीट लिखोगे then you will get full marks. ठीक है. क्लियर हो गया. ओके. अब यहाँ पे when does this thing reaction stops working? अब क्या हो रहा है यहाँ पे H2SO4 आप देख रहे हो कंज्यूम हो रहा है. यहाँ पे भी सल्फेट कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी सल्फेट कंज्यूम हो रहा है. तो इसका मतलब डेंसिटी जो है सल्फर डाइऑक्साइड की H2SO4 की वो कम होती रहती है. जब उसकी डेंसिटी कम होती रहेगी तो उसकी जो ऑपरेशन है H2SO4 की दैट आल्सो इज गोइंग टू डिक्रीज एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग. सेल को वापस रिचार्ज करने के लिए वी हैव टू नाउ सप्लाई करंट फ्रॉम आउटसाइड. कार की बैटरीज को किस तरह से हम रिचार्ज करते हैं, उसके टर्मिनल्स को दूसरे कार की बैटरी के साथ लगाते हैं और उस कार को स्टार्ट करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नॉन ऑपरेशनल बैटरी जो है दैट स्टार्ट्स वर्किंग. क्लियर. तो उसके लिए अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. रिचार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम इसमें करंट बाहर से पास कर रहे हैं. राइट. So there is a reverse reaction which is going to take place over here. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है.
recharging of a battery, right? So इसमें हम क्या कर रहे हैं, a reverse reaction is going to take place, that is 2PbSO4 plus 2H2O to give Pb plus PbO2 plus H2SO. ठीक है, so this is a reverse. So इसमें आप लिख लो, during recharging of a battery, we pass electric current, of suitable voltage in an opposite direction. Such that the electrochemical cell starts behaving as electrolytic cell. Electrochemical cell starts behaving as electrolytic cell. The density of H2SO4 also increases as a result of which the cell again becomes operational. ठीक है? So this is the lead storage battery. Another battery which is given over here is a nickel cadmium storage cell. Nickel cadmium storage cell. This is also a rechargeable battery. ठीक है? And this battery has a longer life than lead storage battery. It has a longer life than lead storage battery. ठीक है? Although it is more expensive, उससे ज़्यादा expensive रहती है. Now let's see what is the anode in this. Anode that is formed of cadmium, nickel cadmium storage battery है, so anode is formed of cadmium. Cathode is formed of nickel hydroxide. ठीक है, और जो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, the electrolyte over here that is nickel dioxide with KOH. So electrolyte is KOH plus nickel dioxide. Let's go on to the reactions. First of all, the reaction which is taking place at the anode. Anode में cadmium is behaving as an anode. ठीक है? ये KOH से 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है. इलेक्ट्रोलाइट का जो KOH है उससे OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा to give us. It is going to give us cadmium oxide plus water plus 2 electrons. ठीक है? Similarly, कैथोड जो है that is formed of nickel hydroxide.
this is going to gain 2 electrons because cathode पे reduction होती है, तो it gains 2 electrons to give us OH नेगेटिव। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे भी आएगा, ठीक है। ओवरऑल जब हम इसका करेंगे, ओवरऑल में दिस एंड दिस कैंसल्स, OH negative and OH negative also cancels. So what are we going to get? Cadmium plus two nickel hydroxide to give us cadmium oxide plus H2O plus NiOH twice, ठीक है। नाउ यहां पे कोई भी आप देख रहे हो कि जब आप फाइनल वाली रिएक्शन देख रहे हो तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो गैसियस नहीं निकल रहा, ओके। तो इसकी वजह से क्योंकि वो गैसियस नहीं निकलता है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल के साथ स्टिक करके रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब वो सेल के साथ स्टिक करके रहेंगे तो रिएक्शन माइट स्टॉप, ठीक है, हिंडर हो जाती है रिएक्शन एंड द सेल इट स्टॉप्स ऑपरेटिंग, ओके। तो इसको रिचार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू गिव अ रिवर्स रिएक्शन। जैसे हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी में एक रिवर्स रिएक्शन देते हैं, वैसे ही एक रिवर्स रिएक्शन हमको इसमें भी देनी पड़ती है, ठीक है, such that the cell starts working again. So we are only left with one topic now, which is corrosion. It is a topic of 15 to 20 minutes that we will finish with now, ठीक है, and we also start with the next chapter tomorrow only, kinetics.